श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Okay, so I have sent you that video also na, Mita, Radhika ji ka, हाँ। ओके, तो शैल भी ठीक है, फिर वीडियो बाद में करते हैं, श्लोका ले लेते हैं हम, है ना। आप जब तक वीडियो करो, तो हमने लास्ट टाइम किया था, मोना यू कांट रीड ना, जैसे अनुजा थी, और कैन यू रीड, कैन यू शेयर दैट पेज मीता, दैट श्लोका आई हैव सेंट यू। ओह ओके 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 ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। ओके, दिस इज 14 श्लोका, फर्स्ट चैप्टर इज ऑब्जर्विंग द आर्मीज, वेयर धृतराष्ट्र इज एक्सप्लेनिंग, सॉरी, संजय इज एक्सप्लेनिंग धृतराष्ट्र, जो वो दुर्योधन का, अर्जुन का जो भी हाल देख रहा है, व्हाट दे आर थिंकिंग, व्हाट दे आर फीलिंग, सो वो सारा एक एक चीज़ विस्तार से धृतराष्ट्र को बता रहा है। सो दिस इज 14 श्लोका। ततः क्षेत्र युक्ते महति से नदते स्थितो माधवा पांडवेश्वा दिव्यो षंडो प्रद मतु। इसका मतलब है ऑन अदर साइड बोथ, पहले तो दुर्योधन का कि व्हाट दुर्योधन इज फीलिंग, व्हाट दुर्योधन इज observing, that he was explaining, now is coming to the Arjuna and Krishna side. On other side, both Lord Krishna and Arjuna, stationed on a great chariot drawn by wild horses, sounded their transcendental conches. इसका explanation है, in contrast with the conch shell blown by Bhishma Deva, the conch shell in the hand of a Krishna and Arjuna are described as a transcendental. The sounding of the transcendental conch shell indicated that there was no hope of victory of the other side because Krishna was on the side of a Pandavas. जो conch shell की side, जो इनके side का जो शंख था, it was giving a such sound. I hope you all understand what he's saying. So उनकी conch shell की sound से ही उनकी victory की घोषणा हो रही थी because Krishna was on that side. कि जहाँ कृष्ण है, victory is there. ज्यास्तु पांडु पुत्रनम Yes, Pakse Jaradana, victory is always with the person like the son of a Pandu because Lord Krishna is associated with him. And whenever and wherever the Lord is present, the goddess of fortune is also there because the goddess of fortune never lives alone without her husband. Therefore, victory and fortunate were awaiting Arjuna as indicated by the transcendental sound produced by the conch shell of a Vishnu or Lord Krishna beside that a chariot on which both the friends were seated had been donated by Agni, the fire god. ये हमने क्विज में लास्ट टाइम किया है। वेलकम श्वेता, हरे कृष्णा। And this, Hare Krishna, this indicated that this chariot was capable of conquering all the side wherever it was drawn over the three worlds. तो इस वर्स में भगवान के होने की इम्पोर्टेंस बताई जा रही है, उनके चैरियट की, और साफ साफ शब्दों में कहा गया है जहाँ भगवान खड़े हैं विक्ट्री और विजय
और लक्ष्मी उनके साथ ही है। कहने का मतलब ये है कि इफ़ यू आर एसोसिएटेड विद द गॉड, victory is yours only. Because but the Arjun was having such a faith, that was the reason he was able to trust him and follow him whatever the Lord Krishna was explaining. So next phrase, Pajjanya Ishikesho Devdata Dhananjaya Pandav Dhatma Mahashana Bhim Karma Rakodara. The Panchjanma, the conchal name Panchjanya, ऋषिकेशा, भगवान कृष्ण को ऋषिकेशा बोला गया. कृष्णा द लॉर्ड हु डायरेक्ट द सेंसेस ऑफ अ डिवोटी. लॉर्ड कृष्णा blew his conch called Panchjanya. Arjun blew his the Devadatta, and Bhima, and warriors eater and performer of a task, blew the terrific conch called Pandura. Lord Krishna is referred to Rishikesha in the verse because he is owner of all the senses. ऋषिकेशा उन्हें इसलिए कहा जाता है because he controls of everything. हमारी जितनी भी senses है, he has all control. So in Vedic language it is said that Rishikesha. The living entities are part and parcel of him, and therefore the senses of the living entities are also part and parcel of his senses. The impulses cannot account for the senses of the living entities. Therefore, they are always anxious to describe all living entities as senseless or impersonal. Since we all are part and parcel of Lord Krishna, Supreme Personality of God, He has all the control. Senseless, impersonal, whatever it is, everything is coming from Him, and He has all the control. The Lord, situated in the heart of all living entities, direct their senses, but He direct in terms of the surrender of the living entity, and in case of a pure devotee, He directly control the senses. Here on the battlefield of a Kurukshetra, the Lord directly controlled the transcendental sense of Arjuna and his particular name of a Rishikesha. The Lord has different name according to his different activity. For example, his name is Madhusudana because he killed the demon of the name Madhu. His name is Govinda because he gives pleasure to the cows and the senses. His name is Vasudeva because he appeared as a son of a Vasudeva. His name is Devaki Nanda because he accepted Devaki as his mother. His name is Yashodananda because he awarded his childhood pastime to Yashoda at Vrindavan. His name is Parthasarthi because he worked as a charioteer of his friend Arjuna. Similarly, his name is Rishikesha because he gave direction to Arjuna on the battlefield of Kurukshetra. Arjuna is referred to Dhananjaya in the verses of he helped his elder brother in fetching wealth when it was required by the king to make expenditure for different sacrifices. Similarly, Bhima is known as a Rokudra because he could eat as vigorously he could perform Herculean tasks such as killing the demon Hidimba. So the particular type of a conch shell blown by the different personalities on the side of a Pandavas, beginning with the lords, were all very encouraging. The fighting soldier on the other side, there were no such credit, nor the presence of a Lord Krishna, the supreme director, nor that of the goddess of a fortune. So they were present to lose the battle, and that was a message announced by the sound of the conch shell. I hope everyone can understand. भगवान के what ऋषिकेशा, श्वेता मोना यू कैन कि ऋषिकेशा क्यों है, वी ऑल आर पार्ट एंड पार्सल. तो जितने भी हमारे इमोशंस हैं, जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, वो भगवान से ही आ रही हैं. और इसमें क्लियरली कहते माई प्योर डिवोटी कैन कंट्रोल गॉड ऑल्सो. The pure devotee can very well connect with the God, with the senses, whatever he is feeling. We are having the same senses, same thing, since we are part and parcel. भगवान ने अलग अलग रूप जिस परिस्थिति में आए हैं, जैसे जैसे आए हैं, वैसे वैसे उनके अनन्य नाम है, अनलिमिटेड नेम्स है. So I hope we all are on the same page. It's clear? Yes? Yeah, okay. Thank you. विमी, आपको कोई डाउट?
I guess it was simple. So we have done with the shloka. Ha video. वॉइस हाँ, वॉइस चली गई है। हाँ आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? नहीं ये एक्चुअली एयरपोर्ट्स इज इट फ्रॉम द मीता साइड? हाँ मीता, इट्स फ्रॉम योर साइड। मीता, यू आर म्यूट तो यही नहीं है मेरे दोस्त के मन में ना। द्वेष है। हाँ, अब जानते हैं, मेरे को इस समय एक कथा याद आ रही है गुरु गोविंद सिंह जी की। गुरु गोविंद सिंह जी के एक भक्त थे भाई कन्हैया जी। भाई कन्हैया जी जो थे वो जब मुगलों से युद्ध होता था, गुरु गोविंद सिंह जी जब युद्ध करते थे मुगलों से, तो शाम के समय में भाई कन्हैया जी जाते थे और युद्ध के बाद में जो इंजर्ड सोल्जर्स होते थे, जो इंजर्ड सैनिक हैं, उन सबको वो एक मशक लेकर जाते थे जिससे सबको जल पिलाते थे। तो मशक होता है जो कंधे पे डाल के वो बना होता है, उसमें पानी भर के वो, क्योंकि सब जो क्रिटिकली इंजर्ड होते थे वो सब पानी मांग रहे होते थे, प्यास लग रही होती थी, गला सूख रहा होता था क्योंकि वो शरीर छोड़ने वाले होते। तो वो जाते थे और सब इंजर्ड को उनको जल पिलाते थे। तो जो गुरु गोविंद सिंह जी के जो सैनिक थे वो बड़े परेशान होते थे कि हम इतनी मेहनत से अपने शत्रु को मार रहे हैं, उनको हम परास्त करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये जाते हैं भाई कन्हैया जी और सबको जल की सेवा दे आते हैं। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी को आकर शिकायत की कि ये कैसे है, आपके भक्त हैं ये जाते हैं और सारे जिनको हमने मेहनत की है, जिनको मारा है, जिन सैनिकों को, उन सबको ये जल की सेवा दे आते हैं, सबको जल पिला देते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, अच्छा तुम भाई कन्हैया जी को मेरे पास भेजो। तो भाई कन्हैया जी जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी के पास आए। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने उनसे पूछा कि कन्हैया जी, मैं सुना है कि आप सबको जल की सेवा देते हो, जो भी जो इंजर्ड वुंडेड सैनिक है, जिनको जख्मी सैनिक है, उन सबको आप शत्रुओं के उनको भी सेवा देते हो जल की, उनको भी जल पिलाते हो। तो भाई कन्हैया जी बोले, गुरु गोविंद सिंह जी तो सब जानते थे, तो भाई कन्हैया जी बोले कि मैं क्या करूं, मुझे तो सपने हर चेहरे में अपने गुरु और भगवान दिखते हैं, तो मुझे हरि और गुरु हर चेहरे में दिखते हैं, मुझे तो फर्क ही नहीं किया जाता कि ये शत्रु है और ये मित्र है मेरा। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, तुम मेरे सच्चे शिष्य हो, और गले से लगा लिया और उन्हें कहा कि आगे से सिर्फ जल ही नहीं पिलाना है, मरहम पट्टी भी करनी है। सो दिस इज अ गुरु। और उनको भेजा गया था खास मकसद से। उन्होंने अपनी कथा बखानो उन्होंने बताया उसमें कि मुझे भेजा गया है, मेरा आने का कोई मन नहीं था,
पर मुझे भगवान ने दर्शन दिया और कहा कि अब कलयुग आया है, तुम्हें जाना है और मुझे ये सेवा देकर भेजिए। तो वो सिर्फ सेवा करने आए और सबसे ज्यादा बलिदान दिया, 4 अपने बेटे का उन्होंने सैक्रिफाइस किया। तो कहने का भाव है, उन्होंने उसको गले से लगा लिया भाई कन्हैया जी को और कहा कि तुम सच्चे भक्त हो, सच्चे शिष्य हो, तुम्हारे को आगे से जल ही नहीं पिलाना, उनकी मरहम पट्टी नहीं करनी। तो दिस इज देयर कि शत्रु का भी शत्रु नहीं होता जो वैष्णव होता। So here is a Vaishnav means, I guess Shweta Mona, you can understand what is the meaning of Vaishnav means who is a Krishna Bhakt. In Vedic language, the people who put tika and wear and who follow the Krishna thing, that is called Vaishnav. So that is why she is saying कि जो भी कृष्ण के प्योर डिवोटी होते हैं वो किसी का भी अपनी तरफ से गलत नहीं करते, कोई द्वेष नहीं रखते, कोई तो उनमें वो सारे गुण आ जाते हैं जो भगवान बोल रहे हैं। वो कभी भी अपनी तरफ से किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। न्याय करना अलग बात है, बट जैसे भगवान जी ने न्याय की लड़ाई करी, पर वो गलत कभी नहीं करेंगे, सबके लिए एक समान रहेंगे, सबके लिए एक जैसा करेंगे, उनके अंदर कोई भी ऐसे गुण नहीं होंगे। एनी डाउट, एनीथिंग? Shall we go to the quiz now? Yes. So, yes. Okay. How can the desires of the living entity be satisfied? When the living entity tries to satisfy the sense of Govinda, when the living entity lives a very charitable life, when the living entity renounces everything, none of these. Lisa? A. Shweta? Krishna, Govinda. एक सेकेंड, मेरा स्क्रीन थोड़ा I can't see. Can you see? I can see. मैंने कुछ व्यू चेंज किया है, वेट। हाँ, so what is the, sorry, how can we desire, एक सेकेंड मेरा कहाँ चला गया, I want to दिख नहीं रहा है। Can you give me a moment please? Yeah. From Arjuna, the son of Kunti, all of the above. All of them. Correct. All of the above. Very well. Very good. A. No, it's all above. All above. All above. All of the above. Okay. Yeah. All above. Okay. Good. Correct answers. श्वेता करेक्ट आंसर, मीता करेक्ट आंसर। मीता तो तुम तो ऐसे ही बैठी हुई हो। श्वेता के ज्यादा है। ये हम मैंने सब फिर से गीता स्टार्ट किया पढ़ना अभी। हाँ। वापस से। तो एनी डाउट, एनीथिंग? और आई हैव अ स्टोरी, बिकॉज अभी जगन्नाथ जी की वो भी बीमार है, तो उनकी कहानियाँ आजकल बहुत सुनती रहती हूँ, सो आई हैव टू शॉर्ट स्टोरीज। जगन्नाथ जी बीमार हैं, ये इसकी भी एक स्टोरी है। हाँ, बताओ। वो बीमार क्यों हुए थे? आप बताओ। जितना मुझे पता है, हाँ। वो एक भक्त थे जगन्नाथ जी के। आई डोंट रिकॉल द नेम ऑफ दैट। वो भक्त मींस वो ही कृष्ण को ही, जगन्नाथ जी को ही सब कुछ मानते थे। हाँ। उनकी फैमिली भी वही है, उनके फ्रेंड भी वही है। तो जब वो बीमार हुए तो बहुत उनका खराब समय आया, तो उन्होंने उनकी सेवा के लिए बहुत लोगों ने ऑफर किया। बोले नहीं, मेरा तो जो कुछ भी है कृष्ण है, और मुझे तो किसी की सेवा नहीं चाहिए। मेरा हाँ। तो मित्र सखा जो भी है वो Absolutely. तो उसके बाद लोगों ने जाके जगन्नाथ जी को बोला, भाई आपका भक्त इतना परेशान है, इतना बीमार है, आप उसे मुक्ति दे दो, क्योंकि वो बिस्तर पर ही है, सब कुछ उसका बड़ा ही जीवन बड़ा कष्टप्रद है। तो कृष्ण बोलते हैं कि उसके जो कष्ट हैं वो यही निकलने हैं, थोड़े दिन के और हैं तो निकल जाने दो। मैं इतना कर सकता हूँ, उसके कष्ट में कम नहीं करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि अगले जन्म में भी वो उन्हीं सब पापों अपने कर्मों के साथ जाए। बेटर है कि वो यही खत्म कर ले करके जाए जन्म में। एंड देन मैं ये कर सकता हूँ, मैं उनका कष्ट अपने साथ ले सकता हूँ। तो वो 15 दिन भगवान ने अपने ऊपर वो कष्ट लिया था। हाँ। और भगवान बीमार हुए थे, इसलिए आज भी उन्हें काढ़ा पिलाया जाता है। 15 दिन
बिल्कुल सात्विक भोजन भगवान को चढ़ता है क्योंकि वो बीमार है। वो उनका नाम माधव है, वो जो भक्त थे। और आज मैं ये हाँ, कहानी right. सुनाने के लिए सोच रही थी, बट आई शॉर्ट दिस इज टू अदर स्टोरी, तो मैंने कहा ये मैं अगली बार सुनाऊंगी। सो उनका माधव नाम था, और इसलिए आज भी तो बोला जाता है ना, हमें तो 14 दिन का क्वारंटाइन अब लोगों को इस बीमारी के बाद मिला है। वो तो कितने सालों से क्वारंटाइन में रह रहे हैं, और उन्हें उस भक्त की तकलीफ़ें अपने ऊपर ले ली। आज भी उन्हें 14 दिन काढ़ा पिलाया जाता है। फिर रथ यात्रा 11 जुलाई से स्टार्ट होएगी। सो वेरी गुड श्वेता, वेरी गुड। सो शेल वी, आई शुड शेयर द, मैंने तो पॉइंट्स बनाए हैं क्योंकि इतनी स्टोरियाज है ना, उन किसके क्या नाम है सब। जैसे एक में मीता, आई कांट सी यू। सो एक थे, चलो आई स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। गीता पांडा करके एक भगवान के भक्त थे, और वो बहुत हैंड टू माउथ थे, बहुत ज़्यादा उनका बहुत ज़्यादा पैसन पर भगवान उस इंसान का काम ही ये था कि बस गीता को इतना रट रखा था, जो गीता में लिखा था भगवान की एक लाइन रट रखी थी, और उसी हिसाब से चलता था कि भगवान ने कहा है, भगवान ने कहा है। तो पुरी में रहते थे, और वहाँ पे लोग उन्हें गीता पांडा के नाम से जानते थे। तो होता क्या है कि उनके पास पैसे वैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो उनकी वाइफ कहती है जाके काम करो, और तुम्हें कोई परवाह नहीं है, तुम्हारे बच्चे तीनों ऐसे भूखे बैठे हुए हैं, और तुम लेकर आओ। भिक्षा मांगा करते थे, तो उनको खाना वाना जाते हैं, नहीं मिलता है, तो उनकी वाइफ लड़ती, तो वो एक ना बहुत लड़ती है कि क्या गीता लेके बैठे रहते हो, तुम्हें घर में खाने बच्चों की कोई परवाह नहीं है। तो वो ना गीता पांडा को भगवान की बातें और भगवान का ध्यान और भगवान की ही चीज़ों से मतलब होता है, और कोई नहीं। तो वो एक लाइन पढ़ाता है, एक श्लोका अन्न से रिलेटेड, कि भगवान ने सबका अन्न तय कर रखा है, तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो सबके पालनहार है, तो वो सबका अन्न समय पे पहुंचा देंगे, वो किसी को भूखा नहीं सुलाते। जैसे हम मनुष्य काम करने जाते हैं, और हम हमारे लिए कमाते हैं, फिर खाते हैं। वो कहते हैं मैं चींटी, बिल्ली, गाय, कुत्ते, सबका खाना है, वो तो कहीं नहीं जा रहे, उनकी तो बुद्धि भी हमारे जैसी नहीं है। तो ऐसा कोई श्लोक था, और वो पढ़वाते हैं, तो वो वाइफ बहुत गुस्से में आती है, उठा के 3 लाइनें से काट देती है, ऐसे काट देती है कि ये मैं नहीं मानती, ये सब गलत है, मतलब गुस्से में ऐसे लाइन काट देती है, गलत है। अब भगवान बहुत नाराज़ हो जाते हैं कि जब उनके भक्त की कोई बात नहीं मान रहा, और कोई भक्त उन पर विश्वास कर रहा है, तो वो उन्हें पसंद नहीं है कि उन पे कोई विश्वास ना करे, और वो इतने चैलेंज में आए। तो होता क्या है, सारे सो जाते हैं, और आधी रात को देर रात को एक 14-15 साल का लड़का आता है, कहता है मैं गीता पांडा का दोस्त का बेटा हूँ, और उन्होंने ये अनाज भेजा है आपके लिए। तो कहती है अच्छा कौन है दोस्त? तो बोले वो दूसरे कोई गांव का नाम बता देता है। तो वो कहती है आप बैठिए, उसकी आओ भगत करती है, आप बैठिए, आप लेकर आए हो, आपको कुछ पानी दूँ, कुछ खाने को दूँ, आराम करिए। बोले मैं नहीं खा सकता हूँ। बोले क्यों नहीं खा सकते? कहते मेरे तो जीप में 3 लाइनें कटी हुई है, मेरी 3 लाइनों से मेरा मुंह किसी ने काट दिया है। तो वो कहती अरे मैं तो आपको कुछ नहीं खिला सकती, मैं आपको कुछ खिलाना चाहती हूँ। तो कहते हैं मैं क्या करूँ, मेरे को इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, मैं इस दर्द के मारे मेरे मुंह में कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि 3 लाइनों से मेरी जीप कटी हुई है। वो ये कह के चला जाता है। फिर उसके बाद उसका सुबह होती है, उसका हस्बैंड पूछता है कि अनाज कहाँ से आया? वो तो समझ जाता है। तो वो बोलती है कि कल तुम्हारे कोई दोस्त का बेटा आया था, वो अनाज दे के गया। तो वो समझ जाता है भगवान आके करके गए हैं। तो बोलता है अच्छा, तो उस जानने के लिए कहता है अच्छा तुमने क्या उसको क्या कहा, तुमने उसने क्या बोला? तो बोलता है कि मैंने उसको बोला कि भाई तो आप आए हो, इतना सारा अनाज लेकर आए हो, तो आप बैठो, मैं आपकी सेवा करती हूँ, मैं आपको खाना खिलाती हूँ। तो उसने मुझे कहा कि मेरा तो मुंह कटा हुआ है, मेरी तो मुंह में 3 लाइनें खिंची हुई हैं बुरी तरह से, मैं कुछ नहीं खा सकता। तो वो ले जाता है, उस गीता के श्लोक को दिखाता है कि ये देखो ये क्या लिखा है, ये लाइनें तुमने खींची थी ना, तो ये भगवान स्वयं आए थे और मेरे लिए खाना। तो मैं यही कह रहा था कि तुम्हें मेरे खाने की और किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो पंडित होता तो पहले के ज़माने में कुछ पंडित कुछ ब्राह्मण भिक्षा दे के ही अपना जीवन निकाला करते थे, वो कोई काम नहीं करते थे, भिक्षा से ही उनका जीवन चलता था। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, इफ़ वी ट्रस्ट कृष्णा, if we trust him, if fully surrender him, then he definitely come for the pure devotees। और पुरी में, मायापुर में, ऐसी जगहों में बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, वृंदावन में ऐसी चीज़ें हुई हैं जो एक एग्जाम्पल सेट किया है। सो दिस इज़ द वन स्टोरी ऑफ गीता पांडा एंड देयर इज अदर स्टोरी। एक थे
सेलबाग करके, श्वेता मोना आपको शायद पता हो, सेलबाग एक मुस्लिम डिवोटी थे भगवान के। अगेन इट इज़ इन पुरी, हाँ और उनका वो आज भी है, पहले वे लेट मी स्टार्ट। तो इट वॉज अ स्टोरी ऑफ 1620 और 25, उसके समय की बात है। सेलबाग वॉज अ मुस्लिम गाय एंड उसके फादर थे लाल बाग, and he saw a lady, Brahman lady, a widow Brahman lady, and he got married with her. उन्होंने उससे ज़बरदस्ती शादी कर ली, उनको दया आई, उन्होंने कहा मैं तुमसे शादी करूँगा, क्योंकि उस ज़माने ज़बरदस्ती इसलिए क्योंकि उस ज़माने में विडो वगैरह शादी नहीं करती थी, तो उसने एक ब्राह्मण लेडी से शादी कर ली। शादी कर ली तो कुछ समय बाद जो लाल बाग थे उनकी तो डेथ हो गई। तो एक दिन क्या, वो लाल बाग फ़ौज में थे, फ़ौज के लिए जाते थे। उनके जाने के बाद उनका बेटा भी फ़ौज में चला गया और वो लड़ने लगा। लड़ते लड़ते उसको बहुत चोटें लग गई। तो उसकी मम्मी ने बोला, मतलब लाल बाग की वाइफ जो ब्राह्मण लेडी थी, उसने कहा कि अगर तुम वो, मतलब उसकी ये हालत हो गई थी, ही वॉज अबाउट टू डाई, सेलबाग। तो उसने कहा कि तुम एक काम करो, अगर तुम बचना चाहते हो, कृपा चाहते हो, तो भगवान की आराधना करो। लॉर्ड कृष्णा जगन्नाथ जो जगत के पिता हैं उनकी आराधना करो, वो ज़रूर सुनेंगे और तुम्हें ठीक करेंगे। वो आराधना करता है, पूजा करता है और वो रिकवर हो जाता है, फर्स्ट क्लास हो जाता है, वो मरते मरते बचता है। तो वो होता है मुस्लिम। तो वो जाता है जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए। तो वहाँ किसी कारणवश उसके लिए दरवाजे नहीं खोले जाते हैं, उसको दर्शन नहीं मिलते। तो वो पैदल 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 वृंदावन जाता है, वृंदावन में दर्शन करता है। फिर जब लौट रहा होता है तो लौटते लौटते उसके मन में ख्याल आता है, तो भी पैदल ही आता है। तो पैदल आ रहा होता है तो वो सोचता है कि मुझे भगवान के अभी तो दर्शन नहीं मिले, अब मैं जा रहा हूँ, अब रथ यात्रा, मतलब मेरे को मंदिर में तो नहीं जाने दिया, अब रथ यात्रा चल रही है, तो रथ यात्रा के बीच में मैं उनको, जो लोग वहाँ नहीं जा पाते, तो इसलिए भगवान बाहर आ जाते हैं जिससे सब उनके दर्शन कर पाएँ। तो वो दर्शन के लिए कि चलो रथ यात्रा है और मैं अब दर्शन कर पाऊँगा, पर उसके चोट वोट लगी हुई तो इतना थक जाता है, वो जाता है और मन में विचार करता है, हे भगवान मुझे आपके दर्शन करने हैं, जब तक मैं पहुँचूँगा तब तक तो आपके दर्शन हो ही नहीं पाएंगे मेरे से, मैं कर ही नहीं पाऊँगा। उसके मन में ये सब विचार चल रहे होते हैं और परेशान हो रहा होता है। वो फिर भी चलता रहता है। तो जितने समय में रथ पहुँचना होता है तो रथ एक जगह रुक जाता है और सारे लोग लगे हुए हैं, उसे हिला रहे हैं। भगवान का रथ तब तक नहीं चलता जब तक सेलबाग पहुंच नहीं जाता। तो जब सेलबाग पहुंचता है, उसको दर्शन होते हैं, तब वो रथ हिलता है। तो भगवान किसी भी हद तक जाते हैं। और आज भी सेलबाग वॉज अ वेरी गुड डिवोटी, ही वॉज अ मुस्लिम डिवोटी। आज भी कहते हैं कि जब भी वो रथ यात्रा स्टार्ट होती है तो वहाँ सेलबाग की समाधि बनी हुई है। समाधि के बाद उसका एक स्थान बना हुआ है। आज भी वो रथ अपने आप वहाँ थोड़ी देर के लिए सेलबाग को दर्शन देता है, उसके बाद आगे बढ़ता है। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ जगन्नाथ. There's many more stories. So this month we will do one or the two story of Jagannath, so which is very interesting. So how God comes and help the pure devotee. So that is why it is said कि कलयुग में तो स्पेशली चेस्टिटी, वो जो चेस्टिटी एंड फेथफुलनेस इज़ वेरी नेसेसरी. अगर हम प्योर हैं, नॉट ओनली विद गॉड, मैंने जो समझा है, भगवान ने जितने भी नियम बनाए हैं, मेरी पूजा करो, मुझे प्यार दो, मुझे प्रसाद लगा के खिलाओ, मेरे से पहले मुझे सर्व करो, तो इट इज़ व्हेन वी सर्व टू हिम, सो वी गिव ऑल द सेंसेस टू हिम. तो जो हमारा भाव उनके लिए होगा वो हम हमारी ज़िंदगी में भी, व्हेन वी आर अ वेरी गुड डिवोटी, व्हेन वी आर सर्विंग हिम द वे ही वांट, सो कोई मतलब ही नहीं है हम कहीं गलत हुए. जो एक अच्छा भक्त है, जो उनकी कहीं भी बातों पे चल रहा है, दैट पर्सन इज़ अ वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड डॉटर, वेरी गुड एम्प्लॉय, वेरी गुड in all the role of our materialistic life. We cannot fail if we are following, if we are maintaining chastity, which is very important in Kali Yuga. So उनकी बताई हुई बातें हमें कहीं नहीं बांधती हैं. कोई लोग कहते हैं कि भगवान ने तो सब कुछ दिया, वो क्यों चाहते सेवा करें. वो जो ये उन्होंने नियम बनाए हैं भगवान के नाम पे करते हैं कि हम में वो प्रैक्टिस हो. हम क्या कभी डेली बैठ के कि हम आइडियलिज्म कि मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं करते हैं. हमारे ये काम है, वो काम है. व्हेन कम्स टू गॉड नेम, देन वी ट्राई टू सर्व हिम, ट्राई टू लिसन हिम कि गॉड सेज दिस. जब वो भाव हमारे अंदर आ जाएगा तो वो मेरी पर्सनालिटी बन जाएगी अपने आप, धीरे 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 धीरे. सो ये भगवान कराते हैं हमारे लिए, उनको तो हम क्या ही दे सकते हैं.
So any question, any doubt? Shweta, Vimmi, Mona, anything? Anything to say? How did you like Mona? Can you speak now? Or you can listen? Can speak. It was very nice. हाँ. Yeah. So, anyways, keep chanting. Yes, keep chanting and be happy. So, चैंट करते समय ये जो या पूजा तुमने वो रथ का बताया, हाँ. ये कहाँ पे है, मतलब जो ये story को कौन सी मैंने जगह? जगन्नाथपुरी. जगन्नाथपुरी. अच्छा. हाँ, जगन्नाथपुरी. और यहाँ पे गुरु गोविंद जी ने भी तपस्या करी थी जाके वहाँ पे बैठ के. अच्छा. ओके. पूजा, आप जीकेटी को फॉलो करते हो क्या? नहीं, मैं फॉलो तो नहीं करती हूँ. जो मेरी मेंटर है ना राधिका कृपा, जिनके मैं वीडियो शेयर करती हूँ, शी कीप ऑन शेयरिंग, शी रिलेट वैष्णविज्म विद सिखिज्म, कि जो हमारे दैट इज ऑल कनेक्टेड. जस्ट टू लेट यू नो, हाँ. जीकेटी ने पिछले हफ्ते बांके बिहारी का पूरा टूर करवाया ऑनलाइन लाइव, और पूरा टेम्पल हाँ. के अंदर. हाँ. Very I will good. try to send the video link. Just send it to the group ना. डाउनलोड हो सकता है. हाँ. तो पूरा अंदर का इसका पूरा जीकेटी ने पूरा वो किया, वो पिछले हफ्ते ही रिलीज हुआ. अगर हो सके तो मैं वो दिखाऊंगी. हाँ, please I'll share, it in please the share. group. Please Switch share. on your camera, Mona, Vimmi, and Shweta. I'll take a picture. ये Okay. जेडी क्या है? पूजा, I don't know. मोना के लिए एक्सप्लेन JKT is Gaur Krishna Das. अच्छा, ओके. सबसे he is just 18 years old. Neeta, I'm in office. Can't click photo. Okay, 2 seconds. Quickly. मोना प्लीज शेयर. हाँ. Waiting. Shweta's anniversary today. Oh, wish you very happy anniversary. May God, Anniversary. may Lord Krishna bless you. May you have more Krishna consciousness days. See, look at the happiness on her face. Balcony. Happiness on her face today. हाँ, we can see. As you know ना, what is special today? Absolutely. So Mona, you share that video. That will be nice. I will try to share that video. Yeah. और श्वेता, आपने जो स्टोरी सुनाई ना, वो स्टोरी मैंने सबसे पहले वही सोचा था कि वही शेयर करूँगी. तभी मैंने बोला तुम सुनाओ. So see how. ले